It was all opposition versus Election Commission of India. The India Bloc MPs took to the streets against the vote chori claim made by the leader of the opposition, Rahul Gandhi, last week. Now, Gandhi had led the stir from Parliament to the ECI office. It was halted though by the Delhi police. Congress, they said, had no permission for the stir. During the protest, police barricaded the roads from Parliament to the ECI office. Many MPs, including Akhilesh Yadav, scaled the barricades. Opposition raised anti-SIR chants against the government and the Election Commission. Soon before the protest reached the ECI office, it was stopped. Police detained several MPs. Many were taken away in buses. MP from TMC, Mahua Moitra, became unconscious. Rahul Gandhi assisted the MPs, attacked the BJP government, saying the government is running away from reality and is scared of them. He said they are protesting to save the constitution. He claimed the stir is for one man, one vote, and that they want to clean and purify the voters' list. But this was not welcomed by the BJP. They hit back at Gandhi and the India Bloc, saying the opposition is trying to create fear in the people's minds ahead of the elections. While defending the Election Commission, BJP said the commission is unbiased. And Congress is spreading Pakistan's narrative and propaganda, calling the allegations baseless. BJP countered Gandhi's vote bank politics stands exposed. एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them. स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में, कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने
संसद की हत्या हो रही है। आप लोगों ने भी एफिडेविट जमा किए थे, आप लोगों ने भी एफिडेविट जमा किए। चुनाव आयोग पे कई बार प्रश्न लगे हैं और अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार मिलकर के वोट लूट रही है। आप लोग मांग रहे सरकार के लिए चुनाव, इस पर चर्चा नहीं होगी संसद में? संसद में तो हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। आज सरकार को क्या संदेश देने आया? सरकार को क्या संदेश देने आया? ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, अधिकारियों के खिलाफ। The demand is that the Election Commission of India needs to answer our questions. Shri Rahul Gandhi through a press conference had shown data which proves exactly what we've been fighting against, the duplication of voters, the multiple epic ID cards and multiple voting in states of one individual, bogus voters. So all of those are issues which undermine democracy, and that is the fight that we are fighting. That the Bharatiya Janata Party is incapable of winning on its own strength. So is now using the Election Commission of India to be able to win states. इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो, 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खरगे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? आज स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी सहित विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम में विश्वास करते हैं। इनका तो इतना बुरा हाल है कि आपस में इतना भी समझौता नहीं कर पाए कि 30 लोग कौन जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा कर। आपसी विवादों में घिरे हुए हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है, एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है, तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था, राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। धन्यवाद। In a bizarre protest, Congress MPs Renuka Chaudhary and Rajiv Shukla staged the stir inside an air-conditioned car rather than on the street. Both the MPs ditched the actual protest. सांसद मोदी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और आप तस्वीरें में देखिए कैसे यहाँ पर जो विपक्षी सांसद हैं वो एसआईआर के मुद्दे पर सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं और कई सांसद जो है वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बार नजारा दिखाएं पूरा इस वक्त यहाँ पर किस तरह की स्थिति हो रखी है। एक तरफ जहाँ सांसद सड़क पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जो उनके सुरक्षा कर्मी है वो पीछे खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है सबसे आखिरी में
कुर्सी पर यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ शरद पवार भी यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, वो बैठे हुए हैं। उन्हीं के साथ साथ टीआर बालू जो है डीएमके के वरिष्ठ सांसद हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये शुरुआत से लेकर अंत तक का आपको पूरा नजारा इस वक्त हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो धरना प्रदर्शन है वो इंडिया ब्लॉक सांसदों का चल रहा है। कुछ सांसद साथ में जो फुटपाथ है वहां पर भी यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ये वो सांसद हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो है पीछे सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजेश शुक्ला जो है वो गाड़ी में यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ जो दूसरी सांसद है रेणुका चौधरी कांग्रेस की, वो भी इस वक्त गाड़ी में यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, उमस है और इसीलिए कुछ सांसदों ने गाड़ी में बैठने का फैसला जो है वो किया। All right, I'm going to go straight across to Shreya Chatterjee for more details. Shreya, chaos and confusion today on the streets of Delhi with several of these MPs that were detained. Delhi police continues to say that there was no permission that was given to this particular protest today, isn't it? But Sneha, first and foremost, there were no permission that was sought by the Delhi police in the first place for the protest march to be continued from the Transport Bhavan to the Election Commission of India. What the MPs essentially did was sought a time from the Election Commission of India, but when it comes to the marching of 300 MPs on the streets, especially adjacent to the Parliament House when a Parliament session is underway, remember there are prohibitionary orders of 163 BNSS which is already implemented. It's primarily why we saw that detention take place in the first place by the Delhi police. But the opposition clearly, Sneha, suggests that because they have in the past written their affidavits before the Election Commission, there hasn't been any real action on the ground, and because they've been protesting repeatedly about the Bihar SIR inside the parliament as well, that is the reason that they've decided to take into the streets. And what Rahul Gandhi suggested, that this is not a political fight, this is a constitutional fight. So clearly tussle on the part of the attack on Election Commission today saw leading the MPs from the parliament to the streets of the national capital. I'm going to thank you for the moment, Shreya, getting us up to speed with those details. Those massive chaos that was seen on the streets of Delhi today with members of parliament, about 250 to 3 of them marching towards the Election Commission of Office. That, in fact, they were detained halfway, many of them now in detention.